Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to this second and final session of our forensic certified courses. Dr. Arif Rashid has joined us. Sir, Bismillah, karen please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you, Dr. Amar, and welcome all the participants in the second course. That step taken by the PMA is very well appreciated, and it will be in benefit of all. Very briefly, start with the first topic of today's session, that is the its name written is negligence, but actually it should be the medical negligence. Should I continue, Dr. Amar? Ji, sir, please. Recitation from the Holy Quran. I will start with the recitation from the Holy Quran. Auzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna atayna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jazakallah. Before going into the detail of that medical negligence, uh, the treatment of the patient is a contract between doctor and the patient. When both has agreed, patient agreed to receive the treatment, and doctor agreed to give the treatment, then there are some sphere of responsibilities for the patient and for the doctor. For the doctor, the sphere of responsibility that he will provide the due care to the patient as per his own claim of skill and knowledge, and maintain the professional secrecy, while the patient will pay the fee and will submit himself or herself to the command of the doctor regarding the history, examination, and investigation. So that contract is governed by common law, and there is a common law tort which has 5 elements. One is that patient has the right to be free from any ailment, and doctor owed a duty towards the patient to provide him the care as per his claim of skill and knowledge. And when there is a breach of duty of a doctor in providing that care and treatment, there is a damage to the patient, and that damage must be compensated. So these 5 elements have to be met to establish the element of negligence regarding the medical treatment. Now, this negligence can be defined as when a certain act or omission is considered uh, to be a mistake or carelessness without the intent of harm by the colleagues of same standard of that specialty to which that doctor is serving. It is somewhat different from medical malpractice. In malpractice, there is some element of intent is there. For example, patient needs more tests to clinch the exact diagnosis of myocardial infarction, but doctor preferred to go home on the pretext that it's end of his duty. That is medical malpractice. This negligence is basically of 2 types: civil and criminal. Then civil negligence, it is pursued in the civil court, and
In that case, there is a harm to the patient. There is not the death of the patient. For example, a doctor extract the healthy tooth instead of the diseased tooth. It is a civil negligence, and it is compensated in terms of money. Other civil negligences are the contributory negligence and third party negligence. Contributory negligence is that in which patient is also negligent. For example, after reducing the fracture, doctor applies the POP and advise the patient क्या to visit him after 3 days for the मेरा कंप्यूटर second भेजा X-ray examination, but patient did not follow that advice. And if any complication occurs, in that case, patient is also contributory to that negligence. Another is the third party negligence, when the other members of the team of the doctor, who is the Sir, can you please senior start member your of the video? team. Dr. Amar, actually, I just came home and really very tired. All That's right, sir, why no I issues. preferred. No issues, sir. Yes. So please continue. Thank you, Thank sir. you. Thank you. When the other members of the team are negligent. For example, during operation, the operation theater staff nurse did not count the gauze pieces and did not count them when receiving back from the surgeon, and one is left inside the abdomen due to lack of counting. That is the third party negligence. The criminal negligence is that negligence in which the action of the doctor is so reckless that patient died. That is the criminal negligence, and it is tried in a criminal court. There is another term that is called res ipsa loquitur. It means things speaks for itself, in which action itself speaks that doctor is negligent. In that case, doctor has to prove that he is not negligent. In all the other negligences, it's the patient who has to prove that doctor was the negligent. For example, doctor left the operation in the midway to bargain for the fee, and death of the patient occurs, or he left the cautery unattended and during the operation, and it burns the tissue and leading to a harm that cannot be recovered. So that is the criminal negligence. That is the basic bulk of the medical negligence. Doctor are tried nowadays in the consumer courts, in the Punjab Healthcare Commission. Application can be submitted to the Pakistan Medical Commission, in the civil courts, and even in the session and high courts, and to the competent authority. The Punjab Healthcare Commission has demanded that police will not enter the FIR unless until doctor proved to be negligent in the inquiry, and after that police will register the FIR against the doctor. In the Pakistan Medical Commission, when an application is lodged against the doctor, then either when the application is scrutinized, if it is found baseless, it can be rejected, or it can be handed over to a committee, and a committee then can proceed with the inquiry as usual the process. And if the doctor is found guilty, he can be provisionally, temporarily, or permanently removed from the registration.
and then the recommendation can be sent to the authority for a removal from the service or to the courts for proceedings as per the case. Dr. Amar, that's all for negligence part is concerned. If anyone wants to ask the question, I am ready to answer. Sir, I do have a question at this point. A couple of months back, during the COVID crisis, one of our colleagues was negligently treated and he died. I read that the government has placed two senior registrars under suspension. So, can you please, if you have any knowledge about that case, can you please brief about that? Thank you. Uh, I have a knowledge of that to an utmost extent, but at this forum, I can't speak of that because I was one of the member of the inquiry. Okay, sir, if you were the member of the inquiry committee, then that's absolutely fine. But my question is that why such things are happening in our setup on a broader prospect? Let's put that Like, case on one side. because all the doctors are my colleagues, younger colleagues or senior colleagues, very respectable and dear to me. But in that case, the basic fault of the regular senior registrar was that he was on duty, but he did not physically attend the patient despite the multiple informed. He only advised on the telephone. Hello. Yes, sir, we are listening, but this is very sad. Anyway, sir, thank you so very much for a great talk on medical negligence. Mr. Nadeem Iqbal has also joined us. Sir, Nadeem sir, can you please brief us on the legal aspects of negligence as you see from aspect of a prosecuting lawyer? Assalamualaikum. First of all, thank you very much कि इस प्रेस्टिजियस फोरम पे मुझे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि मैं भी कुछ अपने जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको लॉ के मतलब जो है डिस्क्राइब करूं। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी तरह जो है ना नेग्लिजेंस को डिस्क्राइब किया है और उसको एक्सप्लेन किया है। मैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है थोड़ी सी ऐड ही करूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैं थोड़ा सा ये बताऊँगा कि नेग्लिजेंस बेसिकली होती क्या है। नेग्लिजेंस और जो एक इसमें से क्राइम में थोड़ा सा फ़र्क होता है और वो फ़र्क होता है कि आपका इंटेंशन क्या है। नेग्लिजेंट एक्ट में आपकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन आपका जो एक्ट है या कोई ऐसा ओमिशन है, यानी ओमिशन यानी आपको एक्ट वो करना चाहिए था और वो अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस वो ड्यू था करना और आपने नहीं किया, तो वो भी जो किसी चीज़ पे ना करने को भी जो है वो नेग्लिजेंस पे फॉल किया जाता है। मतलब आपने एक ड्यू केयर या प्रिकॉशंस अडॉप्ट नहीं किए जो कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस या स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में एक दूसरा इंसान ऑर्डनरी प्रोडोडेंट का या दूसरा आम फैम का इंसान जो है वो अडॉप्ट करता है। इस केयरलेसनेस को और इसको ड्यू केयर या इससे डेविएशन को जो है ना उसको हम नेग्लिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ मेडिकल एस्पेक्ट्स में जो है वो बयान की है। नेग्लिजेंस ये है कि आपने जो है जब राइट टर्न करना है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, राइट टर्न करना है तो आपको राइट लेन में होना चाहिए, लेकिन आप मिडल लेन में जा रहे हैं और आपने राइट टर्न करना है, तो आपने जब राइट टर्न लेने लगे हैं तो आपने राइट लेन वाली गाड़ी को जो है वो हिट कर दिया है, तो ये आपकी नेग्लिजेंस है क्योंकि आपने ड्यू केयर नहीं अडॉप्ट की, क्योंकि आपने राइट टर्न करना था। या इसी तरह अगर आपने लेफ्ट टर्न करना है तो आप मिडल लेन में चल रहे हैं, तो ये है। दूसरा है कि आप कोई इशारे पे रुक जाए, आप नहीं रुके, तो ये भी आपकी नेग्लिजेंस है। आगे आगे जाके इसमें ये है कि आपको ये पता है कि जी अगर अब मैं नेग्लिजेंट या रैश ड्राइविंग के और इशारे पे नहीं रुकूंगा और कोई पैदल चलने वाला या दूसरी तरफ से आने वाले को आप हिट करते हैं, तो इसमें जो है आपकी जो नेग्लिजेंस है वो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे भी कन्वर्ट हो जाती है। मसलन आपको पता है कि अगर आपने ये ड्यू केयर या ड्यू प्रिकॉशंस नहीं अडॉप्ट की
और उसकी वजह से किसी की प्रॉपर्टी या पर्सन को इंजरी हुई है, तो आपको ये पता है और ये ऑब्वियस है, यानी आपने इसको जानबूझ के इग्नोर भी किया है और ये नजर भी आ रहा है कि आपकी इस एक्ट से कोई बंदा या उसकी गाड़ी या उसको जान को या बॉडी को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जैसे डॉक्टर आरिफ साहब ने एग्जाम्पल दी कि थिएटर में आप ऑपरेशन है, बॉडी जो है आपने ऑपरेशन के लिए ओपन की हुई है, तो उसमें आप बार्गेनिंग में चले गए हैं। लेट्स सपोज आपने क्या कि जी एक पेशेंट है, उसकी ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी किडनी में से स्टोन निकाल रहे हैं, आपने ओपन किया तो आपको पता चला है जी कि उसका जो गॉल ब्लैडर है वो ही भी खराब है, तो आप जो है वो बजाय उसको कि आप एक एथिकल और मेडिकल प्रोफेशन को लेकर चले, अगर वो बॉडी खोली है तो आप उसको बार्गेन करने की बजाय आप सिर्फ इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ उसको ऑपरेट करें, बाद में जाके बार्गेन करने के लिए हमने जब बॉडी खुली तो ये भी एक पार्ट जो है हमें पता चला, ये भी एक जो है बीमारी थी, तो इसको भी रिमूव करना ज़रूरी था। बजाय इसके आप बार्गेन करने चले जाएँ पेशेंट के अटेंडेंस से, बॉडी खुली है और उस वजह से जो है वो मरीज़ जो है कोमा में चला जाए, इवन ब्लीडिंग हो जाए या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए और बंदा जो है वो फोत हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो ये सिंपल सा एक्ट जो है एक नेग्लिजेंस का क्रिमिनल नेग्लिजेंस में चला जाता है। तो ऐसे ही जैसे है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस या नेग्लिजेंस जो है ना, उसके 4 जो है ना मेन टाइप्स हैं। एक होती है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मतलब जिसके खिलाफ आपने नेग्लिजेंट एक्टिविटीज, जिसको प्रॉपर्टी या बॉडी को जो है आपने इंजर किया है, उसमें उस बंदे की भी कंट्रीब्यूशन है। ये 1% भी हो सकती है और 99% तक भी हो सकती है। आप जब आप लॉ सूट करते हैं तो कंट्रीब्यूटरी जो वैसे कंट्रीब्यूटरी जो नेग्लिजेंस है उसकी मिसाल ये है कि एक जो है आप स्टॉप पे इशारा जो है वो येलो हो गया और आपको पता है कि अभी रेड हो जी जाएगा, जो है रिकॉर्डिंग का ठीक साइन है, है, लेकिन रिकॉर्ड हो आपने रहा जो है। है जी हेलो नदीम भाई आप प्लीज़ कंटिन्यू करें इधर। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो होगा आपकी टॉक के बाद डॉक्टर आरिफ जो होंगे वो पीडैक पे हमें ब्रीफ करेंगे, तो उसके बाद जो होगा सर फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नदीम भाई प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी जी ठीक है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में जो है जिसको इंजरी हुई है जो है उसमें भी उसका कोई रोल होता है, उसने भी नेग्लिजेंस की है, और जिसने इंजरी कॉज की है या जो है डैमेज या इंजर करने वाला, वो भी उसमें भी उसकी कंट्रीब्यूशन है। रेशो और जो परसेंटेज है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसमें जब लास्ट सूट में जाते हैं तो वो उसको जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में कंपनसेशन या डैमेजेस जो है वो होता है कि शायद कम मिले या ना मिले। इवन मसलन आप एक स्टाफ पे हैं, एक इशारा येलो हो गया है, उधर से जो है वो दूसरी लेन वाले जो हैं वो भी कह रहे हैं ये हमारा ग्रीन होने वाला है, वो भी निकल पड़े, और जो जिसका रेड होने वाला है वो भी कहेंगे मैं जल्दी से निकल जाऊं। तो दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजेंट एक्ट है। या एक जगह पे है, चल रही है गाड़ी, ग्रीन है गाड़ी के लिए इशारा, लेकिन पैदल चलने वाले के लिए नहीं है, तो वो पैदल चलने वाला खाली सड़क है तो वो कहता है मैं जल्दी से गुजर जाऊँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही हो, पीछे कोई गाड़ी जल्दी से तेजी से आती है और वो हिट करती है, तो वो कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस उस सड़क पार करने वाले की भी है कि उसने सड़क खाली दे के जबकि उसका जो इशारा है वो नहीं खुला और वो बीच में आके हिट हुआ है गाड़ी से। ये कंट्रीब्यूशन जो है वो नेग्लिजेंस। दूसरी फॉर्म होती है कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। कंपैरेटिव नेग्लिजेंस में जो है और कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में सिर्फ ये फर्क होता है कि कंपैरेटिव नेग्लिजेंस में भी ये होता है कि मेजर किया जाता है कि किसकी कितनी नेग्लिजेंस है, और उस कंपैरेटिव नेग्लिजेंस के हिसाब से जो है किसी भी लासूर में किसी को कंपनसेशन या डैमेजेस का तयन किया जाता है। मतलब फर्ज करें कि 30% जो है वो नेग्लिजेंस जो विक्टिम है उसकी है और 70% जो है वो जो जिसने नेग्लिजेंस की है उसकी है, तो उसमें जो है जो लॉ सूट में जो प्रोबेबिलिटी है डैमेजेस की वो उसकी फेवर में, जो विक्टिम है उसकी फेवर में बढ़ जाती है। होता यही है कि उसमें भी जो है दोनों की होती है, लेकिन फिर कंपैरिजन में देखा जाता है कि
इसकी ज्यादा नेग्लिजेंस है और उस हिसाब से जो है वो डिसाइड किया जाता है। दूसरा तीसरी एक किस्म आ जाती है विकेरियस ओमिशन या ड्यू केयर और केयरलेसनेस की वजह से कोई और करता है और उस वजह से किसी की प्रॉपर्टी या बॉडी को इंजरी पहुंची है। लेट्स सपोज आपने घर में डॉग रखा है आपके घर की फांसी, लेकिन आप दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और बाहर चला जाता है, किसी को जो है वो इंजर कर देता है, बाइट कर लेता है डॉग, तो वो उसमें उसने आपने तो नहीं उसको किसी पर्सन को जो है इंजरी करती, लेकिन आपकी लायबिलिटी थी, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप उस डॉग को हिफाजत से अपने घर के अंदर या तो टेन में बांधते या दरवाजा बंद करते, और आपके इस एक्ट की वजह से जो है आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या किसी भी जगह पे आप कोई प्रॉपर्टी है आप उसको बेचने हैं या उसको ओन कर रहे हैं, रेंट पे दी हुआ है, उसके घर की सीढ़ी जो है वो डैमेज हो गई है या टूटने वाली है और आप इस बात का इल्म रखते हैं लेकिन आपने चेंज नहीं की और आपके उस एक्ट की वजह से जो है वो कोई जख्मी हो गया सीढ़ी टूटने की वजह से, तो आप केरियसली लायबल हैं। ठीक है, इसी तरह जो है एक चौथी किस्म जो होती है वो ग्रॉस नेग्लिजेंस होती है। ग्रॉस नेग्लिजेंस होती है कि एक जो एक एक्सपर्ट तो होता ही है अपने, लेकिन एक आम ऑर्डिनरी प्रूडेंट का मैं जो है या आर्मी प्रूडेंट का पर्सन आम फैम का वो भी जो है अगर उसको चीज को फोर्सी करे और देखे तो वो उसको अवॉइड करता है। तो लेकिन आपने इतना बड़ा जो है इग्नोरेंस की है कि ऐसा फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि आपने ड्यू केयर और प्रिकॉशंस नहीं दिए। फर्स्ट करें, एक डॉक्टर है एक सर्जन है, वो उसने जो है उल्टा एक्सरे देख लिया है और राइट लिम्ब की बजाय आपका लेफ्ट लिम्ब जो एम्प्यूटेट कर दी है, तो एक सर्जन से जो है वो एक आम आदमी से ये जो भूल या नेग्लिजेंस जो है एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, सर्जन तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस में आता है कि हार्म जो था वो इतना बड़ा एट द फेस ऑफ इट था कि आम बंदा भी ये चीज जो है ना डिटेक्ट कर सकता था, जो कि सर्जन ने नहीं की और उसका राइट की बजाय लेफ्ट आर्म जो है वो उसको कर दी है, एम्प्यूटेट कर दी है। फिर जो है इसके बाद जो है ना नेग्लिजेंस जो है ना वो उसको मेजर करने के या उसके अगर आप जानबूझ के कोई चीज करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाए। बस करें आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने कोई आपका दुश्मन आ गया और आप उसको हिट करके मारना चाहते हैं, तो वो नेग्लिजेंस में नहीं आएगा, वो क्राइम में आएगा, क्योंकि आपका जो है एक्ट भी है और आपकी इंटेंशन भी है, दोनों चीज आपके उसको इंजरी का करने या किल करने की है, तो वो क्राइम में आ जाता है। जाके नेग्लिजेंस में आपका सिर्फ एक्ट जो है वो बियॉन्ड जो ऑर्डिनरी केयर और जो प्रूडेंस है और जो लीगल जो आपको दी गई है अथॉरिटी उसके बियॉन्ड है, तो उसमें जब आप कोई चीज एक्ट करते हैं तो उसमें आपकी इंटेंशन तो नहीं होती, लेकिन उस एक्ट की वजह से उस नेग्लिजेंस की वजह से किसी को नुकसान पहुंचे तो वो नेग्लिजेंस का लॉ सूट या उसके खिलाफ आपका जो है एक्शन होता है। अब ये जो नेग्लिजेंस होती है इसको प्रूव करने के लिए जब आप कोई लॉ सूट ड्राइव करते हैं या कोई क्लेम करते हैं किसी भी फोरम पे या कोर्ट में या अथॉरिटी के पास, तो उसमें जो है चार चीजें जो है ना स्टैब्लिश करनी होती है कि ये जो है ना वाकई नेग्लिजेंस का सूट जो है नेग्लिजेंस जो है वो बनती है। उसमें सबसे पहला होता है कि आपकी ड्यूटी है, आपकी लीगल ड्यूटी होती है कि आपने रीजनेबल जो है वो प्रिकॉशंस या प्रिपरेशन करनी है किसी भी चीज को करने से पहले। लेट्स सपोज जैसे कि ये है कि आप किसी थिएटर में जा रहे हैं तो आपने चेक करना है कि जी स्टाफ जो है मौजूद है, अगर एनेस्थीसिया का है ऑपरेशन इतना बड़ा है कि एनेस्थीसिया देना है, एनेस्थेटिक अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्यूली स्टरलाइज्ड है, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, बाकी सारे जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसको करने के वो आपने चेक करने हैं। इलीगल ड्यूटी है किसी भी जो चीज़ को है आपने चेक करना है कि वो चीज़ तैयार है जिस चीज़ के लिए मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। अगर आपके वो और ये चीज़ें आपके एसओपीज में या लॉ में या रूल्स में प्रोवाइडेड होती हैं, आपको ट्रेन भी किया जाता है
जब ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं, आपने कोई किडनी का ऑपरेशन करना है या ब्रेन का करना है या हार्ट का करना है, अगर आपने वो लीगल ड्यूटी जो है उसको पूरा करना है, अगर वो नहीं की तो वो उसका ये पहला इंग्रेडिएंट है कि आपने वो रीजनेबलनेस या रीजन केयर जो है उसको इंश्योर नहीं किया। दूसरा आता है ब्रीच, मतलब आपने एक लीगल ड्यूटी आपको जो है उसकी ब्रीच कर दी आपने। मैं एक तो था ना रीजनेबल और लीगल ड्यूटी को रीजनली जो है वो इंश्योर करने के लिए आपने सारे पैरामीटर्स को चेक करना है। दूसरा इंग्रेडिएंट होता है कि आपने वो नहीं किए और उस लीगली जो चीज़ थी कि आपने ये ज़रूर करना है, मैंडेटरी था लेकिन आपने नहीं किया, उसकी ब्रीच हो गई है, वो आपने एस्टेब्लिश करनी होती है। लेट्स सपोज यदि अगर किसी को एनेस्थीसिया देके जो है ऑपरेशन करना जरूरी है तो आपने ये चेक ही नहीं किया कि उसके लिए ऑक्सीजन जो है मेन इंग्रेडिएंट है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं तो आपने मतलब ब्रीच कर दी है कि आप जो लीगल ड्यूटी थी आपकी चेक करनी उसकी ब्रीच उसको फॉलो नहीं किया। तीसरा है रिकॉजेशन, कि आपका जो एक्ट है, जो ड्यूटी है और जो ब्रीच है उसकी वजह से जो है वो उस नेग्लिजेंस की वजह से आगे किसी को इंजरी पहुंचे, नुकसान पहुंचे। लेट्स सपोज ऑपरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं आपने की, वो आपकी लीगल ड्यूटी थी, आपने उसकी ब्रीच की, उसकी वजह से जो है वो ऑपरेशन जो है वो कोमा में चला गया, उसकी लाइफ जो है डेंजर में चली गई है, तो ये इंजरी में उसके जो है होता है कि आपके उस एक्ट की वजह से, उस ब्रीच की वजह से, आपकी उस ड्यूटी की वायलेशन की वजह से अगले को इंजरी भी पहुंची है। फिर ये है कि उसकी चौथा जो है वो होता है कि हार्म हुआ है, डैमेज हुआ है आगे को, तो किसी की इन तीनों चीज़ों की वजह से जो आपकी ड्यूटी फुलफिल की ब्रीच की है और आपकी कॉजेशन यानी उस अमल की वजह से जो है अगले को जो है वो लॉस ऑफ लाइफ हो गया, या उसकी कोई ऑर्गन जो था जो जिसका आप ऑपरेशन कर रहे थे उसमें कोई लेट्स फॉर किडनी में कोई स्टोन था, आपने वो उस वजह से स्टोन निकालना था, आपको इतना हुआ कि आपको किडनी निकालनी पड़ेगी, तो ये उसको डैमेज हार्म पहुंचे एक्चुअली। ये चार इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि आपने वाकई ही नेग्लिजेंट एक्ट किया है। तो इसमें जो है ये पाकिस्तान में जो है ना, अब इस पे जो है जो नेग्लिजेंस है इस पे सिविल लायबिलिटी भी बनती है, और अगर आप उसमें नेग्लिजेंस को क्रिमिनल नेग्लिजेंस के एम्बिट में ले जाएं तो उसमें जो है क्रिमिनल लायबिलिटी भी बनती है। मतलब कि सिविल लॉसूट में आपको कंपनसेशन मिल सकती है। लेट्स सपोज आपका कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई आपकी कोई लॉस ऑफ एम्प्यूटेशन हो जाती है गलत, या आपका ऑर्गन गलत नेग्लिजेंस की वजह से रिमूव करना पड़ता है, तो उसी कैलकुलेशन के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स को कोर्ट की अथॉरिटीज जो है इन कंसिडरेशन आती हैं। उसमें होता है कि आपकी एज क्या थी, आप स्टूडेंट थे, आपका पूरा फ्यूचर पड़ा था, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने थे, अगर आप अर्निंग हैंड थे, और आपका जो वो कितना जो डैमेज कितना पहुंचा, आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसको कितना जो है वो लॉस या इंजरी हुई है इस नेग्लिजेंस की वजह से। ले सिर्फ मेडिकल में नहीं, बाकी ड्राइविंग के भी और चीज़ों में भी जो है नेग्लिजेंस में ये सारी चीज़ें इन कंसिडरेशन आई जाती हैं। फिर जो है सिविल सूट होता है, उसका जो है आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस एस्टैब्लिश होती है तो आप क्रिमिनल कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट में भी, या इवन जो कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जैसे कि आप डॉक्टर साहब ने बताया कि लॉ है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है ना उसके पास आप जाएंगे अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी नेग्लिजेंस है, और वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, आइदर वो साइन कर सकता है या वो इसको अगर स्टैब्लिश हो जाए कि जी वाकई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है, लाइसेंस मिसयूज हो सकता है, उसकी जो है वो इम्प्रिजनमेंट की जा सकती है, सेशन कोर्ट को रेफर किया जा सकता है कि ये हमने एस्टेब्लिश किया तो इसको इसे ट्रायल करके तो इसको क्रिमिनली जो है ना इसको ऑफेंस पनिशेबल क्रिमिनल नेग्लिजेंस का जो है सेक्शन वो पाकिस्तान पीनल कोड में भी है। तो इस तरह जो है ना, और एट द सेम टाइम जो है ना दोनों भी हो सकते हैं। सिविल प्रोसीडिंग आप कंपनसेशन डैमेजेस के लिए भी जा सकते हैं, और साथ में आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए पैरेलल भी ये लॉ है कि आप दोनों प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो है जैसे बताया कि
पहले तो ये है कि आइडेंटिफाई करना है ना कि क्रिमिनल ये जो नेग्लिजेंस है वो कौन सी किस्म की है, फिर आपको जब कोई आपके खिलाफ भी होना या जो है, अब बहुत सारी चीजों में जो है बहुत सारी चीजें अल्लाह की तरफ से या आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपने जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस या स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में जो नॉर्मली या आम प्रूडेंट का जो आम जो फैम का जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल है वो जो मेजर्स लेता है, आपने भी वही मेजर्स लिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई किसी को लॉस हो जाता है, डैमेज या इंजरी हो जाती है, तो वो नेग्लिजेंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती। जी डॉक्टर अमास। हेलो। नदीम भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एलेबोरेट टॉक। अब हमारा अगला सेक्शन है। आपने मतलब बड़े अच्छी हमें इस पे एलेबोरेट किया। अगर ऑडियंस में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है नेग्लिजेंस से रिलेटेड, तो प्लीज़, हमारे पास प्रोफेसर आरिफ रशीद भी हैं और नदीम साहब भी हैं जो दे वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के पास बाद में भी अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आता है इस पे, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन हैंड रेज करें, हम इसे पूछेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट इस पे सेशन पे मूव कर रहे हैं, वो है पीडा एक्ट। पीडा एक्ट पे हमें ब्रीफ करेंगे प्रोफेसर आरिफ रशीद मलिक साहब। तमाम पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को पीडा एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि पीडा एक्ट क्या है और कैसे उसे करते हैं, किस तरह से मतलब उस पर प्रोसीड किया जाता है, और अगर आप पे पीडा एक्ट लग जाता है तो आपके पास क्या राइट्स हैं, इस पर प्रोफेसर आरिफ रशीद मलिक आपको बताएंगे। सर प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर अमार। पीडा एक्ट ये है PEEDA, इट मींस पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। असल में जो हिस्ट्री है पंजाब की, 1960 से पहले हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स थे, अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट आया 1958 में। उसके बाद फिर वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स आए 1960 में। फिर पंजाब सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स आए 1975 में। उसके बाद पंजाब सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स आए 1999 में। देन पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस आया 2000 में। उसके बाद ये 2006 में ये पीडा एक्ट आया। अब आप इसमें देखें कि वेस्ट पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट था और पीडा एक्ट है। एक इसमें ऑर्डिनेंस था रिमूवल फ्रॉम सर्विस, बाकी सारे रूल्स थे। तो ये जो इस वक्त इन वोग है पंजाब एम्प्लॉई एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 में आया है। मैं ब्रीफली इसके ऊपर आपको आऊंगा कि इसमें 4 किस्म की लाइबिलिटीज हैं जो कि प्रोसीड की जाती हैं अगेंस्ट द एम्प्लॉय पंजाब गवर्नमेंट। पहली है इनएफिशिएंसी, दूसरी है मिसकंडक्ट, तीसरी है करप्शन, और फोर्थ है एंगेज्ड इन सबवर्सिव एक्टिविटीज, यानी अगेंस्ट द स्टेट, जो है स्टेट के सीक्रेट को डिस्क्लोज करना। ये सबवर्सिव, ये 4 हैं जिनके अगेंस्ट ये प्रोसीड किया जाता है। ये जो इसकी में 2 किस्म की पेनल्टीज होती हैं। जो तो हाजिर सर्विस मुलाजम है उनके ऊपर माइनर पेनल्टीज और मेजर पेनल्टीज, और रिटायर्ड मुलाजमीन के ऊपर भी ये है। जो माइनर पेनल्टीज हैं उनमें सेंश्योर है पहले नंबर पे, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड टू द एक्सटेंट ऑफ 5 इंक्रीमेंट्स। फाइन है नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ। रिडक्शन टू लोअर स्टेज है और स्टेजेस इन पे स्केल subject to a maximum of 5 stages. Withholding of promotion है for a specific period subject to a maximum of 5 years with the fact his junior is promoted.
उस वक्त से ये प्रमोट होगा। जो मेजर पेनल्टीज हैं उनमें रिकवरी ऑफ लॉस है फ्रॉम पे और पेंशन और एनी अमाउंट पेएबल टू द अक्यूज, द होल और पार्ट ऑफ इट और अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग। रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट है और पे स्केल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड subject to a maximum of 5 years. Forfeiture of past service है for a specific period subject to maximum of 5 years. Compulsory retirement है, removal from service है and dismissal from service है। इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट में और रिमूवल फ्रॉम सर्विस में कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं एम्प्लॉय को, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में नहीं मिलते। जो ये पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट हैं उनमें विद होल्डिंग ऑफ पेंशन है और एनी पार्ट देयर ऑफ, विड्रॉल ऑफ पेंशन है और एनी पार्ट देयर ऑफ, और रिकवरी ऑफ लॉस है कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, द होल और एनी पार्ट ऑफ इट फ्रॉम पेंशन और एनी अमाउंट पेएबल टू द अक्यूज अंडर लॉ बाय द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो प्रोसीडिंग इसकी इनिशिएट होती हैं वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए या तो डायरेक्ट भी चार्जशीट किया जा सकता है या पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो उसकी होती है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद चार्जशीट फ्रेम किया जाता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर देती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद भी इंक्वायरी कर सकती है और किसी को इंक्वायरी ऑफिसर भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं। जो शो काज नोटिस जब इशू होता है तो उसके 7 डेज के अंदर जो जिसके खिलाफ इंक्वायरी है अक्यूज, उसने जवाब देना होता है और 60 डेज में ये कार्रवाई मुकम्मल करनी होती है और 90 डेज में इसकी रिपोर्ट हैंड ओवर करनी होती है। अगर 90 डेज में बंदे को हो कि ये मुकम्मल नहीं हो सकती, इंक्वायरी अफसर फील करे, तो वो उसमें 90 डेज खत्म होने से पहले 30 डेज का जो है वो एक टाइम और ले सकता है। इसमें उसको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है और फिर उसके बाद फाइनल ऑर्डर इशू होता है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो सस्पेंशन भी कर सकते हैं और सस्पेंशन के बगैर भी इंक्वायरी हो सकती है। सस्पेंशन 90 डेज तक होगी। अगर 90 डेज तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो एम्प्लॉई जो है वो ऑटोमेटिकली रीइंस्टेट हो जाएगा, लेकिन अगर 90 डेज से पहले 1 मंथ तक मजीद सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। जो मोटे मोटे पॉइंट तो इसके यही हैं, बाकी जो ज्यादा डिटेल है वो नदीम साहब इसमें बता देंगे। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव भी मुकर्रर होता है जिसने तमाम रिकॉर्ड पेश करना होता है और जो है फाइनल ऑर्डर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही इसका वो पेश करना होता है। और जो इसका जो है ये पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट तमाम पंजाब एम्प्लॉइज और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ये जो पीडा एक्ट है इस वक्त मेरी तरफ से, बाकी नदीम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसकी मजीद डिटेल सेक्शन वाइज, सेक्शन 7, 9, 5 उन सब का आगे अगर उसकी जरूरत है तो वो इसको प्लीज जरूर एलेबोरेट कर दें। सर थैंक यू सो मच फॉर अ डिटेल्ड टॉक ऑन पीडा एक्ट। मेरा सर आपसे और नदीम साहब से सर और डॉक्टर सलमान काजमी भी यहाँ पे हैं, तीनों से एक सवाल है, क्योंकि आप लोग लीगल मैटर्स भी देखते रहते हैं, आपने पीडा की इंक्वायरियाँ सर की होंगी लोगों की, क्योंकि आपके पास तो आते रहते हैं। सवाल मेरा ये है कि सर ये एक्ट यहाँ पे मौजूद है, 2006 में आया था, इससे पहले 1960 से लॉज आई जा रहे हैं, चीज़ें आई जा रही हैं, लेकिन ये एक्ट अभी तक इन्फोर्स क्यों नहीं हो सका?
मेरे पास ऐसी ऐसी ये इनको एग्जांपल्स हैं लोगों की जिन्होंने अरबों की करप्शन की है, और वो लोग इस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में बैठे हुए हैं। उन्होंने सिफारिशें करवा के, सारे काम करके, माफिया मंगवा के वो गवर्नमेंट सर्विस में बैठे हुए, पीडा एक्ट के होते हुए भी। तो सर, व्हाई कांट वी इन्फोर्स इट? नहीं, देखें, जो एनफोर्स करना है ना वो तो स्टेट ने करना है। जो इंक्वायरी अफसर है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का जो अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की है। वो 1 से 18 ग्रेड तक तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। 1 से 18 ग्रेड के ऊपर वो चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं। दूसरा, इस एक्ट में एक क्लाज है कि अगर किसी को शो काज नोटिस, मतलब कि पीडा एक्ट की रिकमेंडेशन हो गई है और 90 डेज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसकी एक मजाल, हमारे एक डॉक्टर साहब फौत हो गए हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे, फोरेंसिक मेडिसिन में डेमोस्ट्रेटर थे। तो एक एक्स सीएम मोजेस, वो आए मे अस्पताल इमरजेंसी का, उन्होंने विजिट किया तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो वो लवाहकीन ने वहां शोर डाल दिया कि जी ये डॉक्टर साहबान डेड बॉडी हमारे हवाले नहीं कर रहे। अब वो कोई मेडिकल लीगल केस था, जो डेड बॉडी जो है वो पुलिस के हवाले करनी होती है, लवाहकीन के हवाले नहीं करनी होती। तो बहरहाल मैं उसकी इतनी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रोफेशनल एथिक्स का तकाजा है। वो मोअज़्ज़ज़ सीएम साहब ने उन डॉक्टर साहब को वर्बली कह दिया कि जी इन पे पीडा एक्ट लगा दे और इनको सस्पेंड कर दे। अब वो 90 डेज तक वो डॉक्टर साहब सस्पेंड रहे, लेकिन गवर्नमेंट की मशीनरी की तरफ से कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, इनिशिएट ही नहीं हुई, क्योंकि वो कह के तो सीएम साहब गए थे, तो उनके ऑफिस से ही कोई रिटर्न चीज आनी थी ना। तो जब वो स्टार्ट नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिकली रीइंस्टेट हो गए, और उनको लीगल एडवाइस भी यही दी गई थी कि आप परेशानी में जाके खुद से ना पूछना शुरू कर दें कि जी वो सीएम साहब मुझे सस्पेंड कर गए हैं पीडा लगा के, तो जल्दी से मेरी इंक्वायरी करके तो मुझे एग्जोनरेट करें। उन्होंने कहा जी आप 90 डेज तक सफर ही करें तो बेहतर है। सेकंड इसमें यह है कि पर्सनल हेयरिंग का ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा जो एम्प्लाई हैं वो कोई इंक्वायरी अफसर के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है कि ये मेरे खिलाफ बायस है, तो ये इंक्वायरी नए सिरे से शुरू की जाए, सही इंक्वायरी नहीं हुई, या इंक्वायरी अफसर चेंज कर दिया जाए। कोई ये कंप्लेंट कर देता है कि ये इंक्वायरी अफसर तो मेरे से जूनियर है, तो मैं तो सीनियर हूँ, ये मेरी इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो कोई उस इंक्वायरी के खिलाफ जाके वो जुडिशरी के फोरम पे चला जाता है, तो वो वहां से वो उसका फैसला होने में ज़ाहिर है एक प्रोसेस है, हर काम का तरीका कार है। बड़े बाइज्जत तरीके से और मुअद्दब तरीके से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। तो जब वो एनफोर्स हो भी जाता है तो फिर भी बंदे के पास वो ऑप्शन है कि वो उसको फिर भी जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। इससे ज्यादा मेरे पास मेरा ख्याल है कि एथिकली इस पे और कोई मजीद कमेंट करने की गुंजाइश नहीं है इस फोरम पे। नदीम साहब इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते। सर, एक क्वेश्चन हमें ऑडियंस की तरफ से आया है। नदीम साहब से हम कमेंट लेते हैं, लेकिन पहले सर एक क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से आया है, उस पर सर मुझे जवाब चाहिए होगा आप लोगों की तरफ से। जी। पीडा एक्ट इज ओनली अप्लाइड टू सर्विस एम्प्लॉयज, व्हाट अबाउट रिटायर्ड एम्प्लॉयज? क्या उन पे पीडा एक्ट लग सकता है? पहला सवाल सर। दूसरा सवाल सर मेरी तरफ से है, वो ये कि एक बंदे पे पीडा एक्ट पे इंक्वायरी होती है और वो पीडा एक्ट की इंक्वायरी पे एग्जोनरेट हो जाता है। अब बंदा एक प्लेस पे काम कर रहा है और उसको इंक्वायरी की पदाश में वहाँ से सस्पेंड करके उसको ओएसडी बना के हेल्थ डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है कि जी आप ज़रा तशरीफ ले जाओ, इंक्वायरी लग गई है। बंदा एग्जोनरेट होता है साल बाद, 1.5 साल बाद, व्हाट्सएवर, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में रहता है। अब उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होनी चाहिए उस बंदे की? ये सवाल है सर मेरा। अच्छा, ये जो है ना, मैं नदीम साहब से माजरत के साथ में, जो ये है कि रिटायरमेंट के ऊपर रिटायर्ड बंदे पे पीडा एक्ट लगता है, लेकिन इसमें लिमिटेशन है विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट। ये एक जगह शायद मैंने 1 ईयर पढ़ा है और एक जगह 2 ये ईयर 1 ईयर पढ़ा ही है। है, 1 ईयर ही है हाँ सर, आप ठीक कह हाँ रहे जी, हैं। 1 ईयर 1 से ईयर। ज्यादा हो अच्छा जाए तो फिर सर, वो
सर बात का था कि माजरत, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि एक साहब को रिटायर हुए हुए 10 साल हो गए हैं, पिछले 10 साल में उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि उन पर पीडा एक्ट लगे, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी है जिस पे पीडा एक्ट उन पर लगना बनता है, तो अब इस पे क्या स्टैंडिंग है? नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो वो सिविल सर्वेंट ही नहीं ना रहा। रिटायरमेंट के बाद वाली हरकत पे पीडा एक्ट नहीं लगेगा। पीडा एक्ट लगेगा कि ड्यूरिंग सर्विस विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट अगर कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आ जाती है तो फिर उस पे पीडा एक्ट लगेगा जो ड्यूरिंग सर्विस उनका कंडक्ट है उस पे। रिटायरमेंट के बाद तो ही इज नो मोर ए सिविल सर्वेंट। वो रिटायरमेंट के बाद देखे ना, रिटायरमेंट के बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी में ऐसे गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो क्या, ना उसकी सस्पेंशन हो सकती है ना ट्रांसफर हो सकती है, और इंक्वायरी वो उस पे नहीं, जो उसने सर्विस के दौरान अगर कोई ऐसा कंडक्ट रिटायरमेंट होने से 1 ईयर के अंदर अंदर मंजरे आम पे आ जाता है, या कोई कंप्लेंट कर देता है कि इस बंदे ने प्रमोशन गलत ली थी या इंक्रीमेंट गलत ली थी, या ये जो गबन है इसमें ये इन्वॉल्व है, या इस पोस्टिंग ट्रांसफर में इस तरह की कोई करप्शन हुई है या परचेज में हुई है, वो रिटायरमेंट से 1 ईयर तक के वो वाला मसला जो है पीडा के तहत आएगा। रिटायरमेंट होने के बाद उसकी क्या, वो सिविल सर्वेंट ही नहीं है तो फिर क्या उसको, ये तो है ही पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। जी, इसमें मैं सर थोड़ा सा इजाफा करूंगा। देखें, सर इसमें मैं ना एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो हर लॉ इम्पोज करता है। अगर ये अनएंडिंग छोड़ दें तो ये तो हाँ लिटिगेशन या मसले जो हैं वो कभी एंड ही नहीं होंगे। इसमें जो प्रोविजन है कि अगर फर्ज करें कि कोई रिटायर हो गया, यानी वो बैठा हुआ था, अपना इंचार्ज था, उसके होते हुए जो है चीज़ें जो है सरफस पे नहीं आई, लेकिन उसके रिटायरमेंट के बाद जो है वो चीज़ें बाहर आई हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स निकले हैं या कोई फाइल्स निकली हैं, कोई ऐसा मैटर सरफस पे आया है जो कि वो पीडा एक्ट के अंदर आता है, तो वो उसका भी एक लिमिटेशन है कि ओनली फॉर द आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1 ईयर जो है वो उसको जो है इनिशिएट किया जाए। जब 1 ईयर इलैप्स हो जाए तो वो देखे ना, इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप 5 साल 10 साल बाद करें तो वो कोई आप उसके कोई जो है वो ग्रज निकाल रहा हो या कोई उसका मिस यूज भी हो सकता है। तो इसलिए लिमिटेशन हर लॉ में भी दी, जैसे इनकम टैक्स में भी है कि 5 साल से बियॉन्ड जो है ना आपकी जो असेसमेंट है या जो आपका जो टैक्स लायबिलिटी है उसका नहीं पूछा जाएगा। अगर ये अनएंडिंग छोड़ दिया जाए तो वो तो फिर जिसकी ड्यूटी है, इसका मतलब है उसने जो है उसको ड्यूली परफॉर्म नहीं किया, तो आ गई लिटिगेशन जो है या जो केसेस हैं वो बहुत बर्डन ज्यादा है, तो ये तो सारा अनएंडिंग चीजों पे चला जाएगा। दूसरा जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर किसी की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हुई है पीडा की और वो उस दौरान रिटायर हो गया है, तो लॉ की प्रोविजन ये कहती है कि उसकी रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर अंदर जो है ना वो जो है उसको कंप्लीट करना। जैसे क्या कि सस्पेंशन है या 90 डेज है और उसके अंदर प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना, नहीं कंप्लीट की तो वो विशिएट हो जाएगी। इसी तरह रिटायरमेंट के हवाले से एक तो ये कि साल के अंदर अंदर कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद भी तो पीडा लग सकता है। दूसरा ये है कि अगर वो रिटायर हो जाता है, उस पर पीडा लगा हुआ है, तो वो भी लिमिटेशन जो है वो 2 साल की है कि 2 साल के अंदर अंदर आपने रिटायर्ड पर्सन की जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट करनी है। जी जी सर, मैं आस्क ए क्वेश्चन। जी जी यस प्लीज, पहले यस प्लीज। पहले डॉक्टर साहबा एक्सक्यूज मी, पहले जी वो जो जी एक सवाल था ना अमार साहब का कि जो एक्सोनरेट हो गया है और उसका वो सेक्रेटरिएट में उसको सस्पेंशन में, ये जो सस्पेंशन वाला है ना इसको या ओएसडी वाला या सस्पेंशन वाला, इसमें उसने जो मरकजी दफ्तर है सेक्रेटेरिएट, वहां रोजाना उसने रहना होता है। एक्सोनरेट जब हो गया है, एक्सोनरेट होने के बाद ये देखें, ये जो जुरिस्डिक्शन है, अथॉरिटी है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की है कि वो उसको उसी जगह पे दोबारा पोस्ट करते हैं या किसी और जगह पे दोबारा पोस्ट करते हैं। ये एम्प्लॉय का कोई बेसिक राइट नहीं होता। हाँ, जो उसमें तयशुदा SOPs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं,
उनको फॉलो करना होता है। जैसे वेडलॉक पॉलिसी है, जैसे रिटायरमेंट में जब 3 साल रहते हो या उससे थोड़ा कम अरसा रहता हो, तो वो फिर बंदे का राइट होता है कि वो अपने जो उसका जहाँ का डोमिसाइल है या वो जिस शहर में वो है वहाँ वो रहना चाहता है तो वो उसको ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन इसमें फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की है कि वो ये उनका राइट है। लेकिन ट्रांसफर भी जो एज ए पनिशमेंट के तौर पे भी दी जाती है। अगर किसी को लाहौर के बाहर ही रखना मकसूद है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसका भी टेन्योर 5 साल है, 5 साल से ज्यादा नहीं है। 5 साल तक की वो मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। नदीम साहब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इतना ही। सर जी जी, अभी आप ठीक कह डॉक्टर रहे हैं। फरहत सुल्ताना ने सवाल किया हुआ है सर, बड़ी देर से उनका हैंड रेज है। मैम प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हमारा चूंकि फील्ड ही फोरेंसिक मेडिसिन है तो इससे रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया पीडा एक्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो लोग रिटायर हो चुके हैं या सर्विस छोड़ चुके हैं, जब उनके पास कोर्ट के समन जाते हैं तो दे डोंट कंप्लाई, वो उस पे आते ही नहीं है। तो इस पे भी कोई लॉ है, कोई उन पे एक्ट लगता है? तो अगर इस नहीं पे तो तो ठीक है मैडम जी। सबसे बड़ी जुडिशियल ऑर्डर्स आर सुपीरियर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। वो कोर्ट पुलिस को ऑर्डर कर सकती है उनको प्रोड्यूस करने के लिए, इससे ज्यादा अथॉरिटी क्या होगी? बट सर ये होता नहीं है ना। कोर्ट भी जो है वो नहीं कहती ये है कि तो चले किसी फिर और डॉक्टर को बुला लें, हालांकि वो नहीं डॉक्टर नहीं इसी शहर में वो इसी जगह मौजूद होते हैं। नहीं नहीं वो देखें, अब ये आगे इसकी लीगल रेमिफिकेशंस आ गई। जब कोर्ट कहती है किसी और डॉक्टर को बुला लें और वो डॉक्टर चला भी जाता है, तो वो डॉक्टर को इतना तो नॉलेजेबल होना चाहिए ना कि वो जाके कहे कि जी मेरी जो एविडेंस होगी वो एक हेयर से एविडेंस होगी। मैं डायरेक्ट जी जी ऑब्जर्वर नहीं हूँ इस पोस्टमार्टम फाइंडिंग का, मेडिको लीगल फाइंडिंग का। अगर उसका फायदा कोई डिफेंस लॉयर उठाना चाहता है तो उठा ले, आगे ये कोर्ट की मर्जी है। जी उस सर, वक्त ऐसा तो होता है। तक उस वक्त तक जब तक के वो डॉक्टर मुल्क छोड़ नहीं गया और उसको बुलाना नामुमकिनात में से है, उस वक्त तक। और ये कोर्ट की अथॉरिटी है, वो उसकी पेंशन भी बंद करा सकती है, पुलिस के जरिए भी उससे प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन यहाँ मैं डॉक्टर साहिबान से दरखास्त करूंगा बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में कि मैंने तो ये देखा है कि डॉक्टर लाहौर में ही होते हैं। वो कोई लॉन्ग लीव पे है या कोई स्टडी लीव पे है या रिटायर्ड है, तो वो घर के अंदर से वो समन वाले को कलवा देते हैं कि उन्होंने कह दो जी स्टे लिया गया है। तो ये देखें सर वो जब अदालत वारंट्स आते की। हैं, जब वारंट्स आते हैं तो फिर डॉक्टर्स जाते हैं ना, यूजुअली वो फर्स्ट उसमें जाते ही नहीं है हेयरिंग्स में, ये तो नहीं डॉक्टर्स की तरफ से पहली वो बात तो है ना। ये है, पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नॉन बेलेबल वारंट तो डॉक्टर के इशू ही नहीं हो सकते। ठीक है। जी दूसरी सर, बात जी ये है सर। कि पहले ही समन पे चले जाया करें। और ये ड्यूटी भी तो यही है ना, देखें ये अखलाकी ड्यूटी भी है, लीगल ड्यूटी भी है। जब आप मुंसफ के पास ही नहीं जाएंगे तो फिर आपकी जो वो ड्यूटी थी कि जो आपने पोस्टमार्टम मेडिकल लीगल दिया है वो एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज था ना फॉर फर्दरिंग ऑफ जस्टिस। जब वहां, और आप स्टेट के विटनेस हैं, आप किसी पार्टी के विटनेस नहीं है, तो जब आप वहां जाएंगे ही नहीं तो फिर ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ही अनएथिकल चीज है। और मुझे जी ना सर, जाने की डॉक्टर्स तो तो वजह भी जाते सब। हैं। नहीं सर, जो इन सर्विस हैं वो तो जाते हैं डॉक्टर्स। मसला असल वहां आ रहा है जहाँ पे वो लोग सर्विस छोड़ चुके हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन दे आर लिविंग इन लाहौर और करीब करीब भी मैडम रहते वो हैं, सब रिटायर्ड जो कुछ हैं मौजूद अपनी है। पेंशन लेने बैंक में जाते हैं ना, खुद से ही किराया खर्च करके। बिल्कुल सर। और हर महीने या 3 महीने बाद उन्होंने सर्टिफिकेट भी देना होता है कि मैं जिंदा हूँ। जी तो मुझे मेरी पेंशन दे दें, उसके लिए भी जाते हैं। या वो, जी तो सर। ये अदालत ने बुलाया, ये एक सर्विस है। अगर उनकी किसी गवाही के ऊपर एक इंसाफ होता है तो उसके अजर की तवक्को अल्लाह से रख लें। ना जी जानने वाली सर। बात मेरी अकल से बाहर है। जी सर। मैं तो थोड़ा थैंक यू ऐड वेरी मच। करूंगी कि आज सर की फेयरवेल थी सर आरिफ की, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट रहा उसमें। सर न्याज जो है वो याद कर रहे थे आपको भी,
और उन्होंने बड़ा अच्छा स्पीच की और बड़ा अच्छा मेमोरेबल इवेंट था आज तो वो सर ने चलो आपको भी सर, याद कर रहे थे जी। अच्छा, सर बहुत इसमें बहुत मैं मुबारक हो एक आपको बात कहना रिटायरमेंट पे चाहूँगा। और बेस्ट आई विशेस। वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि वो इज़्ज़त और एहतराम से रिटायर हो। सर, आपको एक कामयाब इनिंग्स खेलने पे बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त दी और अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे सर। बहुत शुक्रिया जी, आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये मैडम ने जो सवाल पूछा था उसमें मैं ऐड करूंगा। बेसिकली ना जो पीडा एक्ट है ना उसके अंडर जो है ना जो पावर्स है ना किसी को समनिंग के लिए और एविडेंस के बुलाने के लिए, वो जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में कोर्ट को पावर्स है वो पावर्स, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में पाकिस्तान पीनल कोड में पावर्स हैं किसी भी विटनेस को या किसी भी बंदे को समन करने की, वो सारी अवेलेबल हैं उसमें। जी जैसे बिल्कुल ठीक है जी। लर्नर डॉक्टर आरफ साहब ने बताया कि जी जो है वो पहले समझ जाते हैं, चस्पानगी होती है, फिर भी ना हो तो फिर वो जो है नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होता है, फिर सॉरी पहले बेलेबल वारंट इश्यू होता है कि अगले को बताया जाए कि जी आपका वारंट इश्यू हो गया है तो आप आ जाए। फिर अगर फिर भी ना आए तो नॉन बेलेबल। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि जी कोर्ट ने जो डॉक्टर्स के लिए जो है स्पेशल जो है एक एग्जम्पशन दी हुई है, तो फिर वो मामला इस नहज तक जाने नहीं चाहिए। वैसे भी कुरान पाक की आयत है कि किसी गवाही को छुपाना जो है या इनकम्प्लीट गवाही जो देना है वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस वजह से ये एथिकली भी, मॉरली भी और लीगली भी चीज़ गलत है। और डॉक्टर्स को जो है बेसिकली देखे ना, जिसने मेडिको लीगल केस किया होता है वो ही डॉक्टर जो है जितनी वो प्रीविटी होता है उस सारे सरकमस्टांसिस और उस रिपोर्ट से, वो ही गवाही देता है जिसने रिपोर्ट या मेडिको लीगल केस किया होता है। तो ये चीज़ें हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए। आपने एज अ स्टेट विटनेस या स्टेट रिप्रेजेंटेटिव पेश होना होता है, और आपने अगर कोई किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो उसको डरना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो कि जो आपने लिखा है वो एक नोबल काज के लिए, डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस के लिए आपकी विटनेस जो है, और वो एज एन टेक्निकल और हैविंग एक्सपर्टीज एंड नॉलेज इन द मेडिकल फील्ड जो है वो आपकी गवाही को जो है किसी भी जुर्म के होने या ना होने में जो है अहम किरदार अदा करना है। तो इस चीज़ को करना चाहिए। जी, थैंक यू तो वेरी मच ये नदीम एक साहब, यू जी एक्सप्लेन्ड वेरी वेल।